Hello, students. How are you? I hope you are all fine at your homes and enjoying the online classes. Students, in our previous class, we have studied about the dispersion of white light through a glass prism. And today's video, we are going to discuss about atmospheric refraction. We might have observed the apparent random wavering or flickering of objects seen through a turbulent stream of hot air rising above a fire or a radiator. The air just above the fire becomes hotter than the air further up. The hotter air is lighter than the cooler air above it and has a refractive index slightly less than of the cooler air. Since the physical conditions of the refracting medium are not stationary, the apparent position of the object as seen through the hot air fluctuates. This wavering is thus an effect of atmospheric refraction of light by the Earth's atmosphere. On a small scale in our local environment, the twinkling of a star is a similar phenomenon. On a much larger scale, let's see how we can explain it. मीन्स क्या है कि हमने देखा होगा कि जो बहुत दूर से जो ऑब्जेक्ट हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो झिलमिल सा दिखाई देता है, मीन्स फ्लिकरिंग करता हुआ दिखाई देता है. वो क्यों होता है कि जैसे कोई फायर हम लगाते हैं तो उस फायर में जो जस्ट ऊपर है, फायर के जस्ट ऊपर है, वो एयर कैसी हो जाती है, वो गर्म हो जाती है, हॉट हो जाती है. तो हॉट एयर जो रहती है वो कूल एयर के कंपैरिजन में लाइट हो जाती है, मतलब उसका वेट लाइट हो जाता है, डेंस हो. जो कूल एयर रहती है वो डेंस होती है, तो जो लाइट एयर रहेगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाएगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा. इसकी वजह से जो वहाँ से लाइट रे होती है उसमें जो लाइटर एयर से डेंसर एयर में जाती है तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से उसमें रिफ्रैक्शन होता है, जिससे कि वो ट्विंकलिंग मतलब स्टार्स का ट्विंकलिंग करना और ये किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्लिंकर करना दिखाई देता है. फर्स्ट जो एग्जांपल हम ले सकते हैं कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का चमकता हुआ दिखाई देना, झिलमिल चमकता हुआ दिखाई देना. The twinkling of a star is due to atmospheric refraction of starlight. The starlight, on entering the Earth's atmosphere, undergoes refraction continuously before it reaches the Earth. The atmosphere refraction occurs in a medium of gradually changing refractive index. Since the atmosphere bends starlight toward the normals, the apparent position of the star is slightly different from its actual position. The star appears slightly higher than its actual position. The star appears slightly higher above than its actual position when viewed near the horizon. Further, this apparent position of the star is not stationary but keeps on changing slightly. Since the physical conditions of the Earth's atmosphere are not stationary as was the case in the previous paragraph, since the stars are very distant, they approximate point-sized source of light as the path of rays of light coming from the stars goes on varying slightly. The apparent position of the star fluctuates, and the amount of starlight entering the eyes flickering. The stars sometimes appear brighter and some other time fainter, which is twinkling effect. Why don't the planet twinkling? The planets are much closer to the Earth and are thus seen as extended source. If we consider a planet as a collection of a large number of point-sized sources of light, the total variation in the amount of light entering our eye from the individual point-sized sources we will average out of 0, thereby nullifying the twinkling effect. मीन्स होता क्या है, जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का जो इफेक्ट है वो क्यों होता है, जो स्टार्स है वो अर्थ से बहुत दूर रहते हैं और
जब उनसे लाइट रे हमारी आंखों तक पहुंचती है तो लाइट रे डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से, मीन्स लाइटर जो मीडियम है, जो स्पेस का जो मीडियम है वो डेंस होता है, जो अर्थ की सरफेस पे जो मीडियम है वो लाइट होता है स्पेस के कंपैरिजन में। तो उनका दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है, और जो वहाँ से लाइट रे आती है, स्टार से कोई भी लाइट रे आती है तो वो डेंस मीडियम से लाइट मीडियम में आती है, जिससे कि वो नॉर्मल से दूर दूर की तरफ हट जाती है, दूर तरफ हट जाती है। इससे क्या होता है कि जो स्टार अपनी पोजीशन से, रियल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाई देता है। और जब ये और दूसरा है कि ट्विंकलिंग का इफेक्ट क्या होता है कि ना तो वो स्टार स्टेशनरी है ना अर्थ स्टेशनरी है, स्टार भी अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है और अर्थ भी अपनी पोजीशन चेंज करती रहती है, जिससे कि जो लाइट रे आती है वो भी अपनी पोजीशन चेंज करती रहेगी, जिसकी वजह से वो हमें ट्विंकलिंग मतलब चमकता हुआ दिखाई देगा, और फ्लिंकरिंग मतलब थोड़ा सा झिलमिल सा दिखाई देता है। सो सेकेंड टाइम अगर हम कोई प्लेनेट की बात करें तो उसमें ट्विंकल इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो स्टार्स होते हैं वो हम पॉइंट साइज का मान सकते हैं, पॉइंट साइज लाइट सोर्स मान सकते हैं, जबकि जो प्लेनेट होता है वो पॉइंट लाइट सोर्स नहीं मान सकते, क्योंकि वो प्लेनेट जो होता है वो छोटे छोटे पॉइंटों से, बहुत सारे पॉइंट्स लाइट सोर्स से मिलकर मतलब एक बड़ा लाइट सोर्स हम उसको मान सकते हैं। तो इस वजह से उसमें जो ट्विंकलिंग इफेक्ट है वो उसकी साइज के अकॉर्डिंग उसको हम नलीफाई कर सकते हैं। Advanced second topic of this class is advanced sunrise and delayed sunset. The sun is visible to us about 2 minutes before the actual sunrise and about 2 minutes after the actual sunset because of atmospheric reflection. By actual sunrise we mean the actual crossing of the horizon by the sun. Figure 11.10 shown the actual and the apparent position of the sun with respect to the horizon. The time difference between actual sunset and the apparent sunset is about 2 minutes. The apparent flattening of the sun's disk at sunrise, the sunset is due to the same phenomenon. मीन्स क्या होता है, जो ये इफेक्ट है ये, इसमें क्या होता है, जो सनराइज होता है, जब भी सनराइज होता है तो वो 2 मिनट पहले ही हमें सन दिखाई देने लगता है, वो रेड कलर का दिखाई देने लगता है। और ऐसे ही जब सन सेट होता है तो उस टाइम भी और जब सनसेट होता है तो वो 2 मिनट तक भी दिखाई देता है, मीन्स जो सनसेट होने के बाद भी वो 2 मिनट तक हमें दिखाई देता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब सनराइज और सनसेट होता है तो उससे निकलने वाली लाइट रे कंटिन्यूसली रिफ्रैक्टिंग होती रहती है जब तक वो हमारी आइज तक पहुंचती है। तो क्या होता है, जो डेंस एयर से लाइट एयर में आती है, मीन्स डेंस मीडियम से लाइट मीडियम में आती है, तो वो नॉर्मल से दूर हटती है, जिसकी वजह से और जो सन है जो एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसकी वजह से सनराइज और सनसेट में दोनों में जब जो डिफरेंस होता है वो 2 मिनट्स का होता है, मीन्स जब एक्चुअल सनराइज होता है उससे 2 मिनट पहले ही हमें सन दिखाई देने लगता है, और जब एक्चुअल सनसेट होता है उसके 2 मिनट के बाद तक हमें सन दिखाई देने लगता है। ठीक है। Next topic is scattering of light. The interplay of light with object around us gives rise to several spectacular phenomena in nature. The blue color of the sky, color of the water in deep sea, the reddening of the sun at sunrise and the sunset are some of the wonderful phenomena we are familiar with. In the previous class, we have learned about the scattering of light by colloidal particles. The path of a beam of light passing through a true solution is not visible.
However, its parts become visible through a colloidal solution where the size of the particles is relatively larger. मीन्स क्या होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का स्कैटरिंग होना। ये क्या होता है अगर हम नॉर्मल एक कमरे में बैठे मतलब लाइट का जो पाथ है वो दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है? जब अगर लार्जर पॉइंट साइज के ऑब्जेक्ट्स हैं एयर में तो जो लाइट है उससे रिफ्लेक्ट होके दूसरी तरफ जाएगी, जिससे कि लाइट में वो ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे। तो वो हमें लाइट का पाथ दिखाई देता है उन ऑब्जेक्ट्स के से उन ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमें लाइट का पाथ दिखाई देता है। अगर वो ऑब्जेक्ट बहुत ही नल साइज के मतलब जो दिखाई नहीं देंगे तो हमें लाइट का पाथ मतलब लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी और लाइट सिंपल वे में दिखाई देगी, उसका पाथ नहीं दिखाई देगा। इसको समझने के लिए एक ये होता है टिंडल इफेक्ट होता है। टिंडल इफेक्ट को हम समझते हैं। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट, द Earth's atmosphere is a heterogeneous mixture of minute particles. These particles include smoke, tiny water droplets, suspended particles of dust, and molecules of air. When a beam of light strikes such fine particles, the path of the beam becomes visible. The light reaches us after being reflected diffusely by these particles. The phenomenon of scattering of light by the colloidal particles gives rise to the Tyndall effect, which we have studied in class 9th. This phenomenon is seen when a fine beam of sunlight enters a smoke-filled room through a small hole. Thus, the scattering of light makes the particle visible. The Tyndall effect can also be observed when the sunlight passes through a canopy of a dense forest. Here, tiny water droplets in the mist scatters light. The colors of the scattered light depends on the size of the scattering particle. Very fine particle scatters mainly blue light, while particles of larger size scatters light of longer wavelength. If the size of scattering particles is large enough, then the scattered light may even appear white. इसका होता है टिंडल इफेक्ट में क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी मतलब गैसेज होती हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स कैसे कि स्मोक होती है, इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होती है और कुछ डस्ट के भी पार्टिकल्स होते हैं एयर्स में। और जब कोई लाइट आती है तो वो इनसे टकराती है, इन पार्टिकल्स से टकराती है और रिफ्लेक्ट होती है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें, एक बंद कमरे में, एक अंधेरे वाले कमरे में अगर हम स्मोक करते हैं और उसमें से कोई भी एक छोटी सी जगह से हम अगर सनलाइट को आने दें तो हमें वो सनलाइट जहाँ से आ रही है वो उसका पाथ दिखाई देगा। उस सनलाइट उस होल से जो सनलाइट आ रही है उसमें वो जो पार्टिकल्स है वो मूव करते हुए दिखाई देंगे। अगर हम दूसरा एग्जांपल लेके वो बहुत ही डेंस फॉरेस्ट, बहुत ही घना जंगल जिसको हम बोल सकते हो, उसमें से जब सनलाइट ऊपर से आती है तो हमें वो उस जो सनलाइट आ रही है उसमें वो जो पार्टिकल्स मूव करते हुए दिखाई देते हैं। तो यही टिंडल इफेक्ट कहलाता है। जो सनलाइट में वो पार्टिकल्स दिखाई देते हैं वो टिंडल इफेक्ट कहलाता है। उन पार्टिकल की वजह से वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है। Why is the color of the sky blue? The molecule of air and other fine particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of the visible light. These are more effective in scattering of light of shorter wavelength at the blue and than light of the longer wavelength at the red end. The red light has the wavelength about 1.8 times greater than the blue light. Thus, the sunlight passes through the atmosphere. The fine particles in the air scatter the blue color shorter wavelengths more strongly than red. The scattered blue light enters our eyes. If the earth had no atmosphere, there would not have seen any scattering. Then the sky would have looked dark. The sky appears dark to passengers flying at the high altitudes
as scattering is not prominent at such heights. You might have observed that danger signal light are red in color. Do you know why? The red is least scattered by fog or smoke. Therefore, it can be seen in the same color at a distance. मीन्स क्या होता है, जो स्काई होता है वो हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। वो क्या होता है कि जब हमने वाइट लाइट को हमने प्रिज्म से रिफ्लेक्शन उसका डिस्पर्जन पढ़ा था, प्रिज्म ग्लास प्रिज्म से उसका डिस्पर्जन पढ़ा था, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हमने देखे थे। कौन सा? रेड से लेके वायलेट तक का कलर्स देखा था। तो उसमें जो उन कलर्स को याद करने के लिए हमने एक फॉर्मूला भी देखा, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म भी बनाई थी। वो थी विव और वी से वॉयलेट एंड जो आर लास्ट में जो आ रहा है उससे रेड। तो उसमें क्या हो रहा था, जो सबसे पहले आ रही थी वॉयलेट मीन्स नीला कलर, ब्लू कलर जिसको हम कह सकते हैं, वो उसकी उसमें अगर हम देखें तो उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है वॉयलेट कलर की, और रेड कलर की सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए रेड कलर कम रिफ्लेक्ट होता है और ब्लू कलर सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है। और जब सन स्काई में रहता है कंटिन्यू, मतलब सीधे ऊपर रहता है, वर्टिकल में रहता है, तो जो स्काई का जो कलर है वो ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि वो जो उससे निकलने वाली लाइट रे कंटिन्यूसली रिफ्लेक्ट होगी, तो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट कौन सी होगी? ब्लू लाइट। मतलब जो वाइट लाइट से आएगी वो उसमें से सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्ट होगी वो कौन सी होगी? ब्लू लाइट है, जिसकी वजह से वो स्काई ब्लू दिखाई देता है। रेड इतनी रिफ्रैक्ट नहीं हो पाती, मीन्स रेड का जो रिफ्रैक्टिव मीन्स जो वेवलेंथ उसकी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण वो रिफ्रैक्ट नहीं हो पाती, और ब्लू की कम होने के कारण वो ज़्यादा फैल जाती है, जिससे कि हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है। और इसके कंपैरिजन में अगर हम दूसरा एग्जांपल ले कि जब सनसेट और सनराइज होता है, तो सन जो होता है वो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, वो इस और रेड कलर का दिखाई देता है। तो उस टाइम वो सीधे हमारे ऊपर नहीं होकर वो हॉरिजॉन्टल में होता है, जिसकी वजह से जो ब्लू लाइट है वो नीचे की तरफ हो जाती है, जो जिसका रिफ्लेक्ट मतलब जिसकी वेवलेंथ कम है, मीन्स रेड लाइट की वेवलेंथ कम है, वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है, जिससे कि वो रेड कलर का दिखाई देता है सनराइज और सनसेट के टाइम। ठीक है। और दूसरी चीज़, हम ये जो रेड कलर की लाइट्स है इनका यूज कहाँ पे करते हैं? इनका यूज हम करते हैं डेंजर सिग्नल्स को दिखाने के लिए इसका यूज करते हैं, क्योंकि ये इसलिए यूज करते हैं इनको, क्योंकि जैसे फॉग के टाइम में कुछ भी दिखाई नहीं देता, पर रेड लाइट की वेवलेंथ कम होने के कारण वो रिफ्रैक्ट नहीं हो पाती, वो दूर से ही दिखाई देती है। मीन्स अगर हम बहुत ज़्यादा फॉग है, स्मोक है, तो वो रेड लाइट हमें दूर से दिखाई देगी, क्योंकि वो रिफ्रैक्ट नहीं हो पाती पार्टिकल्स से। इसलिए रेड लाइट का यूज डेंजर सिग्नल्स में यूज किया जाता है। द कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड द सनसेट, जो कलर होता है वो सन का वो सनराइज और सनसेट के बीच सनराइज और सनसेट पर कैसा होता है। वी सीन द स्काई एंड द सन एट द सनसेट एंड द सनराइज, have you wondered at so why the sun and surrounding sky appear red? Let us do an activity to understand the blue color of the sky and the reddish appearance of the sun at the sunrise and sunset. हमने सनसेट और सनराइज के समय सन को देखा है, उसका कलर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है, और स्काई का कलर कैसा होता है? ब्लू कलर होता है। तो ये क्यों होता है, इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी को करने के लिए क्या करते हैं? प्लेस ए स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ वाइट लाइट एट द फोकस ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस L1। जो यहाँ पे जो लेंस दिया गया है ये L1 लेंस है, और ये जो S है ये वाइट लाइट सोर्स है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वाइट लाइट सोर्स है। इसके बाद क्या बोल रहा है कि अलाउ द लाइट बीम टू पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट ग्लास टैंक T
कंटेनिंग क्लियर वाटर। और जो ये ब्लू कलर में जो टैंक बनाया हुआ है, इसमें क्लियर वाटर है, ग्लास का टैंक है ये, जिसमें से जो ट्रांसपेरेंट है। Allow the beam of the light to pass through a circular hole made in the cardboard. Obtain a sharp image of the circular hole on the screen using a second converging lens and shown in figure. और इस जब लाइट इस ट्रांसपेरेंट टैंक से निकलेगी तो हम एक कार्डबोर्ड लगा देते हैं, उसमें एक होल कर देते हैं, जिससे वो होल करने के बाद उस कार्डबोर्ड के बाद एक और कन्वर्जिंग लेंस L2 रखते हैं, जिससे कि वो क्या करेगा, वो जो पैरेलल लाइंस आती है उनको कन्वर्ज कर देगा और उसकी इमेज को हम MN स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम क्या देखते हैं इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि dissolve about 200 grams of sodium thiosulfate in about 2 liters of clean water taken in the tank, about 1 to 2 ml of concentrated sulfuric acid to the water. What we observe, we will find microscopic sulfur particle precipitating in about 2 to 3 minutes as the sulfur particles begin to form. We can observe the blue light from the three sides of the glass tank. This is due to scattering of short wavelength by the minute. Colloidal sulfur particles observe the color of the transmitted light from the fourth side of the glass tank facing the circular hole. It is interesting to observe at the first the orange red color and then bright crimson red on the screen. मीन्स क्या है, जब हमने ये सब सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम थायोसल्फेट को उस टैंक में मिला दिया, तो हम क्या देखते हैं, जो और लाइट आती है, जो लाइट सोर्स से जो लाइट आती है वो टैंक ग्लास टैंक में जो लाइट आती है उसके जो थ्री साइड्स से अगर हम देखेंगे, टैंक के थ्री साइड्स से अगर हम देखते हैं तो लाइट को वो हमें ब्लू दिखाई देता है। और ये क्यों होता है, ये होता है शॉर्ट वेवलेंथ की स्कैटरिंग की वजह से होता है। और अगर हम फोर्थ साइड से देखते हैं ग्लास टैंक को, जहाँ पर होल कार्डबोर्ड में होल किया गया है, वहाँ से अगर हम देखते हैं तो वो पहले किस तरह का दिखाई देता है, वो ऑरेंज रेड दिखाई देता है और फिर उसके बाद वो ब्राइट क्रिम्सन रेड कलर का दिखाई देता है स्क्रीन पर, स्क्रीन के बाद। सेम यही रीज़न है कि हमें जो सन होता है वो सनराइज और सनसेट के टाइम हम उसे रेड कलर का देख सकते हैं। This activity demonstrates the scattering of light that helps you to understand the bluish color of the sky and the reddish appearance of the sun at the sunrise or the sunset. Light from the sun near the horizon passes through a thicker layer of the air and the larger distance in the Earth's atmosphere before reaching our eyes. However, the light from the sun overhead would travel relatively shorter distance as the sun appears white, only a little of the blue and violet colors the scattered near the horizon. Most of the blue light and the shorter wavelength are scattered away by the particles. Therefore, the light that reaches our eyes is of longer wavelength. This gives rise to the reddish appearance of the sun. Means सनराइज और सनसेट टाइम क्या होता है, वो जो सन होता है वो हॉरिजन के पास हॉरिजन के पास होता है, जिससे कि जो लाइट आती है उसमें जो शॉर्टर वेवलेंथ की जो लाइट है, शॉर्टर वेवलेंथ की वो पार्टिकल्स से रिफ्रैक्ट हो जाती है, और जो लार्जर वेवलेंथ की जो लाइट है जैसे कि रेड लाइट वो हमारी आइज तक पहुंचती है। मीन्स लार्जर वेवलेंथ वाली कौन सी थी, रेड कलर, तो वो रेड कलर हमें हमारी आइज तक पहुंचता है। इस वजह से वो जो सन होता है वो सनराइज और सनसेट के टाइम वो हमें रेड कलर का दिखाई देता है। और अगर हम नून की बात करें, इन द नून सन जो होता है वो जस्ट हमारे अबव होता है, मीन्स हेड पे होता है, जिससे कि उसे शॉर्टर डिस्टेंस जो लाइट रे रहती है, सन से निकलने वाली लाइट रे, उसको शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल करनी होती है, वो सीधे ऊपर रहते और उस टाइम जो होता है वो स्कैटरिंग जो
और उससे निकलने वाली लाइट रे वो सीधे हम तक पहुंच जाती है और वो स्कैटर्ड नहीं हो पाती। इसकी वजह से जो सन होता है वो नून के टाइम हमें चमकीला दिखाई देता है, जबकि वो सनराइज और सनसेट के टाइम वो हमें रेड दिखाई देता है। ठीक है, सो this is the chapter 11. We have completed the chapter 11. What we have learned in this chapter: the ability of the eye to focus both near and distant object by adjusting its focal length is called the accommodation of eye. मीन्स accommodation of eye पढ़ चुके थे कि जो अगर हम कुछ ज़्यादा पास वाले ऑब्जेक्ट को ज़्यादा दूर वाले ऑब्जेक्ट ज़्यादा पास वाले ऑब्जेक्ट को अलग अलग देखते हैं तो उसके लिए हमारी आइज़ क्या करती है, उसकी जो उसमें जो लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है, उसी को पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस एट विच आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई, और एट लीस्ट or the least distance of distinct vision for a young adult with a normal vision it is about 25 centimeter। जो सबसे कम दूरी होती है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होती है, जिससे कि जो हम हैं हम क्लियरली किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं बिना किसी स्ट्रेन के, वो उसको क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट बोलते हैं, वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं। और ये कितनी होती है फॉर यंग अडल्ट विद अ नॉर्मल विजन वाले यंग के लिए ये कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। द कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ द विजन इंक्लूड मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। Myopia, short-sightedness, the image of the distinct object is focused before the retina is corrected by using a concave lens of suitable power. Hypermetropia, far-sightedness, the image of nearby object is focused beyond the retina is corrected by using a convex lens of suitable power. The eye loses its power of accommodation at all age। मीन्स हमने थ्री टाइप्स के हमने डिफेक्ट्स पढ़े थे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। मायोपिया क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस होता है। इसमें क्या होता है कि हमें सब जो पास रखे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर दिखाई देते हैं, जबकि दूर वाले ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देते। दूर वाले ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो रेटिना से पहले ही बन जाती है, इस वजह से वो दिखाई नहीं देता। तो इसको दूर करने के लिए हमें कॉनकेव लेंस का डिफरेंट पावर्स के लिए डिफरेंट पावर्स के कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। और अगर हम हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो उसका सेकंड नेम क्या होता है, फार साइटेडनेस। उसमें क्या होता है, जो दूर के ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली दिखाई देते हैं और जो पास वाले ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली नहीं दिखाई देते। इसमें क्या होता है, जो पास वाले ऑब्जेक्ट है उनकी इमेज जो बनती है वो रेटिना के बियॉन्ड बनती है, इस वजह से वो क्लियरली नहीं दिखाई दे पाते। इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जो रेटिना के बियॉन्ड इमेज बनाता है वो उसको कॉन्वेक्स लेंस का यूज करने पर वो रेटिना पर इमेज बनती है, जिससे कि वो क्लियरली दिखाई देने लगते हैं। और जो थर्ड है प्रेसबायोपिया, ये क्या होता है, ये ओल्ड एज में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आई होता है वो पावर ऑफ अकोमोडेशन खो देता है, तो इसकी वजह से ये तीसरा डिफेक्ट होता है आइज में। इसको दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इसको दूर करने के लिए हम दोनों टाइप के लेंस का यूज करते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस का। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डाइवर्जन। जो वाइट लाइट का डिफरेंट कलर्स में टूट जाना क्या कहलाता है, डिस्पर्जन कहलाता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट causes the blue color of the sky and the reddening of the sun at the sunrise and sunset। सनराइज और सनसेट के टाइम सन का कलर रेड होना और स्काई का कलर ब्लू होना, ये क्यों होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। सो आई होप ये चैप्टर समझ आया होगा कि like, share and this video, so thank you very much।